Hello, friends, a warm welcome, and let's start with understanding the next series, and you can say the next lecture on important international and also national topics, which are related with both prelims, mains, and also maybe with different options. What is the goal? The goal is not to tell you the current affairs, which is otherwise also available everywhere. The goal is also not to tell you the facts. The goal is to make you more robust. The goal is to make you more sustainable. The goal is to make you more confident. The goal is to make you more, I should say, uh, transparent with your own work ethics and also make you more stronger in approaching both prelims and the mains answers because it requires a kind of a strength which we try to bring through this lecture. And definitely do like, share, and subscribe our channel. And in case of any kind of queries, please do get back. And we do provide individual mentorship and guidance according to the need, desirable conditions, and also situation demanding what kind of skills a candidate requires. So let's start with the Indian Express first, and we can move forward. We will be talking about so many different topics. It itself is a whole horizon like a rainbow, जहां पर हम इतनी सारी चीज़ों की बात करते हैं कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा if you are able to integrate and if you are able to link and if you are having the same kind of intensity which we are trying to put forward to you, which we are sure is going to help you when once you try consistently and you keep on doing it again with the supreme faith in your abilities. इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता. So, with this objective, let's start with the Indian Express, and it is talking about Indian of the Year award, जो कि बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स और कंपनीज देते हैं, इसीलिए इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको मोटिवेट होने के लिए टीवी देखने की ज़रूरत भी नहीं है. रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कैंडिडेट्स, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. मैंने पूछा भाई तू पहले मोटिवेट कैसे होती थी. देन द कैंडिडेट इज सेइंग कि सर ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, पर वो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती थी. अब सर लेकिन मुझे वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. मैंने पूछा क्यों. बोला सर बिकॉज अब मेरे पास टारगेट है, अब मेरे पास गोल है, अब मेरे पास क्लैरिटी है कि मुझे करना क्या है, अब मेरे पास एक वंडरफुल अप टू द मार्क अप्रोच है जो शायद आपके पास रहेगी ओनली इफ यू वर्क स्मार्ट, वरना वो उड़ जाएगी. जैसे कि जैसे हैरी पॉटर का वो जो हैरी पॉटर द विजार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, uh, उस उन मूवीज में जैसा आपने देखा होगा या इफ यू रेड द स्टोरीज कि उसके अंदर भी ऐसे चेंजेस आते थे. तो गोइंग फर्दर एंड अंडरस्टैंडिंग विद द की थिंग कि क्या हुआ, क्या है हुआ ये है कि द न्यू CJI इज नॉमिनेटेड एंड और यू कैन से Justice Chandrachud sir is going to be the next CJI. He is the senior most judge and he will be taking oath on 9th November. But the most important thing is that senior most judges obviously taken up. That is fine. But we are going to discuss or we are discussing in fact right now कि आखिर कॉलेजियम का रोल क्या है. आखिर कॉलेजियम जो है वो कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो कॉलेजियम बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि वो कॉलेजियम कोई कन्वेंशन है, वो कॉलेजियम कोई प्रेसिडेंस है, या वो कॉलेजियम सिस्टम अपने आप जजेस ने खुद बना लिया और वो आगे किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं. आखिर कॉलेजियम सिस्टम वर्क कैसे करता है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ यू नो दिस present conditions where we are talking about the principle of seniority with respect to Chandrachud sir. But do recall our previous lectures जहां हमने खुद कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है, एक अपॉइंटिंग सिस्टम होता है जहां पर जो है मिलजुल कर, मैं कहूँ अगर सिंपल भाषा में तो, लेकिन पूरी ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी से बात की जाती है. कॉलेजियम यानी कि चार, एक CJI प्लस 4, लेकिन चंद्रचूड़ सर के टाइम में CJI चंद्रचूड़ +5+1 कॉलेजियम होगा. आखिर क्योंकि कॉलेजियम के अंदर मस्ट है कि नेक्स्ट जो CJI पोटेंशियल होना चाहिए उसका होना ज़रूरी है. एंड बाई चांस चंद्रचूड़ सर के कॉलेजियम में जब वो CJI टेक ओवर करेंगे उसके अंदर जो भी पहले 4 जजेस होंगे वो CJI के पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है. फिर 2023 में जब जून जनवरी 2023 में उनमें से एक जज रिटायर होंगे तो दूसरे जज जो उसके अंदर आएंगे तब भी नहीं है. फिर मई 2023 में जब जस्टिस एक और रिटायर होंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल जो
जस्टिस होने चाहिए, जो नवंबर 11 2024 को चंद्रचूड़ सर को जो रिप्लेस करेंगे, ही विल बी देयर एंड हिज नेम इज हिज एक्सीलेंसी, और संजीव खन्ना सर वहां पर होंगे। तो 5+1 अपने आप हो गया, क्योंकि हर कॉस्ट के ऊपर हर तरीके से जो पोटेंशियल सीजीआई होना चाहिए सक्सेशन के अनुसार, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात मैंने आपको एक बताई, लेकिन अब मैं रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको याद है फर्स्ट जजिस केस क्या था? फर्स्ट जजिस केस कौन से साल में आया था? फर्स्ट जजिस केस का लैंडमार्क डिसीजन क्या था? फिर सेकंड जजिस केस का लैंडमार्क डिसीजन क्या था? और उसके बाद थर्ड जजिस केस का लैंडमार्क डिसीजन क्या था? 1993, 1998 ऑलरेडी हम एक प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, और आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी ये डिटेल्स में आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि बार बार इसको पढ़ना नहीं है। अब की बार जब मैंने आपसे बोला आंख बंद कीजिए, वीडियो रोकिए और सोचिए, और आपको याद आना चाहिए, नोटबुक में खुद लिखना चाहिए। नहीं तो इसको दोबारा करिए, और आर्टिकल भी याद होने चाहिए कि आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217 क्लॉज 1 दोनों क्यों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि लीगल बैकिंग है इस सिस्टम की, करंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है, और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि बेस्ट अवेलेबल टैलेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे आए। सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, दे आर द बेस्ट फिट पीपल टू गाइड एंड टू लर्न। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू सी, दिस वाज द फर्स्ट न्यूज आइटम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मुद्दे हमें ढूंढने हैं, मुद्दे ढूंढने हैं, और मुद्दों से हमें आइडिया ढूंढना है। अगर आप कॉलेजियम की बात डेमोक्रेसी के क्वेश्चन में, गवर्नेंस के क्वेश्चन में अपने आप नहीं कर पाएंगे, तो कॉलेजियम पढ़ने का फायदा क्या है? Secondly, going for Interpol, so please do look with what is Interpol, where it is headquarters, और Interpol के अंदर इंडिया अगर मेंबर है तो कब से है, और Interpol के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं। इतना काफी है, और कोई फनी या कोई क्यूरियस फैक्ट हो वो भी विकिपीडिया के पहले 4 लाइनों में आपको मिल जाएगा, इतना बहुत है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं चाहिए। मूविंग फर्दर, president honorable president is there in Arunachal Pradesh, so they are talking about इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आपको कुछ जगहों के नाम पता हो तो कोई बुराई नहीं है, व्हेन यू आर डूइंग एटलस, व्हेन यू आर डूइंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट, आप अभी खोल लो और साथ में आप देखिए कि जैसे इफ नॉट अरुणाचल प्रदेश, आई एम wrongly putting up, it should be त्रिपुरा बेसिकली। सो त्रिपुरा का आप मैप खोल लीजिए, त्रिपुरा के मैप में देखिए, जैसे आप देखिए कि तीरथमुख कहाँ है, आखिर आखिर है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको देखिए आप, ये क्या है, बस इतना देखने से आपको काफी होगा। महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम जो और कल्चर सेंटर की जो बात हो रही है, पुष्प बांता पैलेस जो ये है, ये क्या है, ये बस इतना देख लेंगे एक एक लाइन, तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटीग्रल इंडिया, इट इज पार्ट ऑफ द लर्निंग, एंड वी शुड नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स ऑल्सो। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इंडिया की डिविनिटी वर्ल्ड में पीस लेके आएगी। इंडिया की डिविनिटी कैसे उन्होंने कहा, उन्होंने महाकाल कॉरिडोर की बात की, उन्होंने काशी विश्वनाथ की बात की, उन्होंने करतारपुर साहिब की बात की, उन्होंने हेमकुंड साहिब की बात की, स्वदेश दर्शन की बात की, उन्होंने प्रसाद योजना की बात की, उन्होंने सर्किट की बात की, टूरिस्ट सर्किट्स की बात की, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की बात की। तो 12 ज्योतिर्लिंग आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ज्योतिर्लिंग नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा वो ज्योतिर्लिंग पे जो टेम्पल है वो कौन से कौन से हिल लॉक के ऊपर है, या कौन से वो हिल रेंजेस से जुड़ा हुआ है, या वहाँ पर कौन से टाइप की टोपोग्राफी है, या वहाँ पे कौन से टाइप की ट्राइबल्स हैं, या वहाँ से कौन सी नदी बह रही है। आप रटते रहिएगा ज्योतिर्लिंग और क्वेश्चन आएगा कुछ और। सेम स्ट्रेटजी शुड बी अप्लाइड टू अदर ऑल्सो, चाहे वो पुष्कर हो, चाहे फिर वो यू नो तिरुचिरापल्ली हो, चाहे फिर वो आई शुड से कुन्नूर हो, चाहे फिर वो और भी कोई जगह हो। दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी वी हैव टू यूज फॉर पीटी, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सिमिलरली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इट हैज रिटन द टॉप रैंकिंग। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो टॉप रैंकिंग जो आई है उसके बाद बाकी कौन कौन सी है, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि रैंकिंग कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बढ़ सकती है, व्हाट वी शुड डू। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये हमारे देखने की बात है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी अगर मान लो दिल्ली में होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की हम बात करते हैं दिल्ली में, उसका एक ब्लूप्रिंट इमर्ज होता है, तो आप देखिए कि आपके हिसाब से ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए। जो जनरल बातें हैं जो होनी चाहिए, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, लिंकेज है, उसके अलावा आप क्या सोचते हो कि उसको वाकई सक्सेसफुल बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या। प्लीज डू थिंक इन दिस लाइन एंड ट्राई टू ब्रिंग some positive points. Then moving further, we are talking about uh,
सपोज देर इज एन इलीगल माइनिंग, ये एथिक्स की केस स्टडी, बहुत अच्छी केस स्टडी है। यहाँ पर अरावलीज का नाम है, एग्जाम के अंदर अरावलीज का नाम नहीं देंगे, वो अरावलीज के अंदर एनजीटी का नाम भी नहीं आएगा, अरावली में आएगा आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं एंड देन देर इज एन इलीगल माइनिंग अगर हो रही है किसी भी ग्रीन एरिया के अंदर, देन व्हाट स्टेप यू टू बी टेकिंग, और आप उसको बंद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एनजीटी ने एक कमेटी बनाई, सो दैट इज वाई द टाइटल क्या कहता है, इट्स ऑफिशियल, यानी कि पता तो सबको ही था लेकिन अब इट्स ऑफिशियल हो गया है, यानी कि अब ये पेपर पे आ गई है। 8 मेंबर कमेटी थी चेयर्ड बाय द चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो आपको भी लिखना पड़ेगा, आई विल ब्रिंग द रोल ऑफ चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, देन आई विल ब्रिंग द रोल ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम द नॉट मिनिस्टर, आई शुड से ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अपार्ट फ्रॉम दैट माइनिंग ऑफिसर्स एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कैसे एक हमें बॉडी अलग अलग चाहिए, हमें विदेश खनिज जो खनिज के लिए हमने काबिल की बात की थी। तो आपको चीजें जोड़नी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। काबिल जो है हमने रेयर अर्थ मेटल्स के केस में कहा था, लेकिन ये भी जो है माइनिंग है। तो माइनिंग यहाँ पे सैंड की है, माइनिंग यहाँ पर नेचुरल सॉइल की है और सैंड की है, लेकिन पॉइंट ये दिस इज अ वेरी ग्रेव डेंजर टू द इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजी, स्पेशली इन द अरावलीज। अरावलीज अब कैसी माउंटेन्स है ये आपको पता होनी चाहिए, अरावलीज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ये आपको पता होना चाहिए, अरावलीज का सबसे बड़ा हिलॉक कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, क्या वहाँ कोई जैन या कोई बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, विदाउट दैट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इंडिया ने वोट किया, वोट अगेंस्ट किया रशियन डिमांड के, जो रशिया डिमांडिंग दैट यूनाइटेड जनरल असेंबली मस्ट हैव ए सीक्रेट बैलेट। तो ये देखिए, आप देखने वाली बात क्या है कि एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन टेरिटरीज में जो इंडिया का स्टैंड एकदम ओपनली, पहले दे वर नॉट कंडमिंग रशियन रशियन एक्ट ऑफ अटैकिंग यूक्रेन। नाउ इंडिया इज हैविंग ए वेरी वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, इंडिया has adopted a very carefully and nuanced position, क्योंकि Russia is becoming very very aggressive. India is not condemning Russian invasion so far, but it is talking about that ये बंद होना चाहिए. It is also talking about hostilities भी बंद हो जानी चाहिए. अब हम बात करते हैं सिताब दियारा. सिताब दियारा यानी सरन में है ये, सरन, सिताब दियारा, सरन. वहां पर एक बहुत बड़े लोकनायक पैदा हुए, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण. सो जब हम जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण साहब जो हैं, आप कहिए कि वो जुड़े हुए हैं किस चीज़ से, वो जुड़े हुए हैं सोशलिज्म से. जयप्रकाश नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण वो ऐसी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो ही स्टूड फॉर मास मूवमेंट्स. अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, ही स्टूड फॉर आइडियाज ऑफ इन्फ्लुएंस बाय कार्ल मार्क्स. अगर मैं और बात करूं तो ही जॉइंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और ही वाज पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो, एंड ही वाज इनवाइटेड बाय जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द स्पीच ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद. लेकिन बाद में उन्होंने, ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि कांग्रेस का ही एक पार्ट थी. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस से बाहर आ गए, उन्होंने बना दी सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में आचार्य जे बी कृपलानी, आचार्य जे बी कृपलानी जो थे, उनकी पार्टी थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी. उन पार्टी से वो जुड़ गए और क्या बन गए मिलके, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. यानी कि सोशलिस्ट पार्टी प्लस किसान मजदूर प्रजा पार्टी इज इक्वल टू प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. नेहरू बहुत कीन थे कि जेपी शुड ज्वाइन द यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन जेपी साहब ने अपने आप को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रखा, सोशल कॉजेज के ऊपर उन्होंने उसको फोकस किया. भूदान मूवमेंट जो हुई थी आचार्य विनोबा भावे की, प्लीज चेक, पोचमपल्ली से स्टार्ट हुई, कौन से साल में स्टार्ट हुई, क्यों खत्म हुई, क्यों फेल हुई, ये आपको खुद पता होना चाहिए. नहीं पता चलेगा तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. सो द पॉइंट इज दैट उन्होंने किस चीज़ की बात की, उन्होंने बात की, जेपी साहब ने बात की कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी. कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी. उन्होंने कहा कि भैया सेंट्रलाइजेशन जो होता है, अथॉरिटेरियन रूल जो होता है, वो बढ़ाता है आपका मोरल और फाइनेंशियल करप्शन. इसीलिए जब स्टूडेंट्स ने 1973 में गुजरात में डिमांड करनी शुरू की कि भैया मैस का बिल बहुत बढ़ गया है, और उन्होंने एजिटेशन करना शुरू किया, तो फैलता चला गया. पहले वर्कर्स में फैला, फिर टीचर्स में फैला, फिर उसके बाद जो है और भी ग्रुप्स उसके अंदर जुड़ते चले गए, और वो बोलने लगे भैया सरकार बदलो. ऐसे केस में जेपी साहब ने गुजरात के अंदर एक पॉलिटिकल चेंज लाने की बात की, उन्होंने अल्टरनेटिव रूट की बात की, उन्होंने स्टूडेंट पावर को रियलाइज किया, और वो अपने पीछे उनको उनको एक रास्ता दिखाने की बात की. इसीलिए करप्शन के अगेंस्ट उनकी बिहार में भी उनकी बढ़ती चली गई, और इसीलिए उन्होंने 1974 में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की.
तो जेपी साहब ने मूवमेंट को लीड किया और उन्होंने क्या कहा पटना में 1974 में, पटना इज एन अमेजिंग प्लेस, पटना एक गढ़ है, पटना अपने आप में आइडियाज का गढ़ है, आज से नहीं, अजात शत्रु के समय से है। तो इसीलिए उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति आनी चाहिए भारत में, यानी टोटल रिवोल्यूशन। तो इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी जब इम्पोज हुई, प्लीज डेट बताइए, आपको डेट एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि गांधी, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी कब इम्पोज की, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगी, आपको पता होनी चाहिए। मैंने बोला हर चीज पता होने का मतलब नहीं कि एग्जाम में आ जाएगी। सो जून 25 1975 को उन्होंने इम्पोज की और उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल का अपोज करना शुरू किया जेपी साहब ने, और उसके बाद जो है अपोजिशन पार्टीज को एक लीडरशिप मिल गई, चाहे फिर वो आरएसएस थे, जनसंघ थे, सबके सब जो है सोचने लगे कि भाई जो है ये अब हमारी लीडरशिप एक बात बनेगी। तो जेपी साहब को आप एक पॉपुलर मास लीडर मान सकते हैं। उसके बाद जो है जनता पार्टी जब फॉर्म हुई थी 1977 में, जो गवर्नमेंट बनी, उसमें भी जेपी साहब का रोल था। तो ग्रास रूट लेवल के लीडर थे, रियल पावर पीपल मूवमेंट से लेके आते थे, और उन्होंने आरएसएस को भी इंगेज किया, जबकि आरएसएस और जो नो संघ था उससे उनके बहुत सारे मामलों में ही डिडंट बिलीव देयर आइडियाज, ही डिडंट लाइक देयर आइडियाज ऑफ कि मेजोरिटेरियन कम्युनिटी वाला, ही बिलीव दैट हर रिलीजियस कम्युनिटी को उसका एक वो जगह मिलनी चाहिए। और हिंदू कम्युनलिज्म जो है वो सबसे खतरनाक था उनकी नज़रों में, क्योंकि वो बोलते थे हिंदू कम्युनलिज्म को आप हिंदू नेशनलिज्म बना के भी प्रस्तुत कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, इवन मुलायम सिंह यादव हों, ये सारे के सारे प्रोटीजीज हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारे जेपी साहब हैं, जेपी साहब का एक लिंक था हमारे नागा, नागा मूवमेंट के साथ। जो नागा अभी भी जो नागा एजिटेशन है, या नागा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागालैंड का जो इशू है शुरू से ही, कि नागालैंड वांट्स दैट दे शुड बी गिवन कंप्लीट पावर टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव देयर ओन फ्लैग, इवन दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, ये बात को उन्होंने शुरू से रोकने की कोशिश की। यानी आप लगा लीजिए 1950s के अंदर जयप्रकाश नारायण हर गांव गांव गए और उन्होंने जो है अंगामी अंगामी झापू फिजू, अंगामी ANGAMI PHIZO, अंगामी झापू फिजो, वो जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था इंडिया से इंडिपेंडेंस और मिलिट्री एक्शन भी होने की बात हो गई थी, तब बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनमें जेपी जो सबसे अलग थे, जेपी सबसे आगे रहे। तो नागा सिविल सोसाइटी ने उनके एफर्ट्स को रियलाइज किया, एंड दैट इज हाउ आफ्टर 1964 यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू हुई, जो अभी भी चल रही है। तो असम चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम चलिहा सर एंड जेपी सर, दे प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ही बिलीव दैट कि नागालैंड को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, दोनों को मिलकर एक मिडिल ग्राउंड के ऊपर आना पड़ेगा। समथिंग लाइक ही बिलीव दैट कि यूनाइटेड किंगडम का मॉडल था, जो जहाँ पे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, वैसा मॉडल नागालैंड का इंडिया में बन सकता है। तो क्या मॉडल है, आप ये देखिए, एक बार पीटी के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि यूके बड़ा है, यूनाइटेड किंगडम बड़ा है, कि इंग्लैंड बड़ा है, और इंग्लैंड के अंदर वेल्स है कि नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन भी आ चुका है। तो स्टार्ट लुकिंग इनटू मैप इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अगेंस्ट थे, नागा इशू को इंटरनेशनलाइज करने के अगेंस्ट थे, इसीलिए आप कह सकते हो कि ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज नागा इशू इज कंसर्न। सो coming back to the newspaper, which we can say that this is very very important to understand that how and where uh, दिस मूवमेंट इज गोइंग ऑन। आज भी अगर हम बात करें कि भाई, अगर आज भी हम बात करें कि नागा मूवमेंट और इवन जेपी साहब का जो रोल है वो कैसे रिलेवेंट है, तो आप देखोगे कि अभी भी देखिए ऑन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दैट उनका स्टैचू जो है, उनके जो सितब दियारा, उनका जो गांव है सारण डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर उसको इनॉग्रेट किया गया था। ओके, सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मैनी फैक्ट्स एंड मैनी पॉइंट्स। प्लीज़ आप देखिए, आप गांव की लोकेशन भी देखिए, क्योंकि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है, तो दे टॉक अबाउट कि इसको कैसे और डेवलप किया जाए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू सी कि भाई आखिर आपको अगर हम की पकड़े तो द कोर्ट, वो बताना चाहूंगा मैं आपको, वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट। लिख लीजिएगा इस कोर्ट को, वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। कितनी जबरदस्त बात कही है। वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट बट ओनली हु इज लेफ्ट।
ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। इसलिए रशिया और यूक्रेन वॉर के केस में ये बिल्कुल एप्ट है। आप उस पर सोचिए, एथिक्स के आंसर में, एस्से में, इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं, एंड यू विल हैव एन ऑसम opportunity to score at least few more marks than your contemporaries. हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो क्या हिंदुइज्म टर्म्स कॉलोनाइजेशन के पीरियड से आया? हिंदुइज्म टर्म्स क्या कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश ने यूज करना शुरू किया, कि उससे पहले हिंदुइज्म था ही नहीं? कि उससे पहले आप जब कहते हो शैव और वैष्णव और शाक्त क्या आपस में लड़ते ही रहते थे? क्या हिंदुइज्म का कोई शब्द ही नहीं था? ऐसा कहना गलत है। हिंदुइज्म जो है शब्द अपने आप में थोड़ा पहले से भी था, लेकिन हिंदुइज्म अपने आप में बहुत ही डीप सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है। हिंदुइज्म अपने आप के अंदर एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। हिंदुइज्म अपने आप के अंदर एक बाहर से ना सीखने वाले आइडियाज़ का मॉडल है, क्योंकि उपनिषद के टाइम से खुद ही इसने एक ऐसा सिस्टम, खुद ही ऐसे आइडियाज़ बनाए जिनके वजूद की वजह से आज तक संस्कृति का निर्माण और प्रवाह हुआ है। तो ये कह देना कि भाई हिंदुइज्म जो है कॉलोनियल कॉलोनियल इंटरवेंशन है, और हिंदुइज्म जो है वो इसलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में उसको मार्जिनलाइज किया गया, या उसको आप कह लीजिए उसको बदनाम किया गया। द पॉइंट इज़ दैट कि हिंदू जो सिस्टम है, हिंदुइज्म है, उसके अंदर इतना बड़ा कॉस्मिक एक संसार है कि उसके अंदर शिव विष्णु सभी एग्जिस्ट करते हैं। शिव विष्णु शाक्त पीठ और सब कुछ है। तो पॉइंट ये है कि हिंदूज या हिंदुइज्म बहुत ही वाइड, बहुत ही टॉलरेंट और बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड और डायनेमिक आइडेंटिटी है। उस पर और स्टडी की जानी चाहिए। आप अगर भक्ति सेंट्स की बात करोगे तो आप एक नाथ और तुकाराम के आइडियाज़ की बात करोगे। आप अगर कबीर को पढ़ोगे तब भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। इवन नानक भी जो है वो रिचुअल्स के अगेंस्ट है नानक, लेकिन जो वेदों की जो एसेंस है, उपनिषद की जो एसेंस है, गुरु नानक साहब जी वो उससे कहीं ना कहीं उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो इसके ज़रूर अगेंस्ट है कि आप कर्मकांड डिस्क्रिमिनेशन, उसके अगेंस्ट तो आपके लिंगायत्स भी हैं। So that is how we have to see. Question comes in art and culture in the prelims examination, जहाँ हमारे पास स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव ओरिएंटेशन के होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमें सारी बातें पता हों। प्लीज़ डू लुक इनटू द आर्ट एंड कल्चर सीरीज ऑल्सो, जो आपको हेल्प कर सकती है हाउ टू थिंक एंड टोन टूवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर। वो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आगे बात करें तेमसुला आओ, तो अगेन नागालैंड की बात हो रही थी। तेमसुला आओ, शी वॉज एन 80-year-old ग्रेट लेडी, ग्रेट पर्सन, एंड शी हैज़ बीन अ राइटर। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, इसलिए मैंने सोचा आपको इनसे मैं अवगत कराऊं। तेमसुला आओ ने अपने काम में अपने जीवन को दर्शाया है। बचपन में उनके माँ बाप नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो है जीवन को उन्होंने जिया, और जल्दी मैरिज होने के बावजूद भी उन्होंने लिखना बंद नहीं किया, और उन्होंने संसार को, लाइफ को पॉजिटिवली बताया। और आज की डेट में उनका इसलिए कहना है कि लाइफ कुछ नहीं होती, लाइफ इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इतने कष्ट आए लेकिन लास्ट में सक्सेस मिली, आपको भी मिलेगी, सिविल सर्विसेज को भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? जब आपका ईमान, जब आपकी नीयत, जब आपकी सोच क्लियर और स्मार्टली वर्क करेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज पेपर 3 मेंस की अगर मैं बात करूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बिना तो बैंक चलते ही नहीं है। तो एक लिंक है ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस में और एक्सटर्नल कमोडिटी शॉक्स में। तो यानी यहाँ पर एक्सटर्नल कमोडिटी शॉक, यानी कि कमोडिटी प्राइस होते हैं, कमोडिटी प्राइस जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट से लिंक होते हैं, और उसकी वजह से ही बैंक का जो है परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है, ऐसा कहना है इस स्टडी का। So they are saying that public sector banks are having a disproportionate share of NPAs. पब्लिक सेक्टर बैंक के पास ज़्यादा शेयर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, अगर हम मुकाबला करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉडल ही डिफरेंट है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर ऐसी कमोडिटीज़ में ज़्यादा है जो प्राइस सेंसिटिव हैं, हायर एक्सपोजर है ऐसी चीज़ों में जो जीवन से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जैसे आयरन है, स्टील्स है, टेक्सटाइल्स है, तो उनमें उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि आयरन, स्टील्स और टेक्सटाइल का जो प्राइस है वो एक्सटर्नली भी लिंक होगा, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से डिसाइड होगा। जब जब कमोडिटी प्राइसेस का बूम होगा, एनपीएस कम हो जाएंगे, बैंकिंग में कोई स्ट्रेस ही दिखाई नहीं देगा, जैसे कि कोविड में भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब जब उनका डाउन जाएगा तब तक आपको एनपीए बढ़ जाएंगे। यानी अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ और मेरे बैंक से लोन लेते ही जो है कमोडिटी प्राइसेस डिप्रेस हो जाते हैं, तो इसका मतलब भाई ऐसा है मेरी तो लग गई, क्योंकि जितने पैसे मैंने लिए उससे अब मुझे कम दाम पे चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, और चीज़ें मैं कम दाम पे बेचूंगा, रिटर्न कम आएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, मार्जिन भी कम होगा, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेबर कॉस्ट जबकि फिक्स रहेगी, मार्जिन कम हो जाएगा।
तो इसीलिए इन्होंने एक क्या किया, द राइटर्स उन्होंने बोला भैया इन जो 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 ये प्राइस मूवमेंट है इसको इसको चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंकों के जो डूबने एनपीए बढ़ने का कारण है वो बेसिकली ये है, ना कि अदर वे अराउंड। मल्टीपल एक्सपोजर्स की बात की उन्होंने की, अलग अलग सेक्टर्स की उन्होंने बात की, इसलिए उन्होंने कहा कि एक नॉमिनल प्राइस इंडेक्स बना देते हैं कम्युनिटी के हिसाब से, और अलग अलग बैंक पकड़ोगे आप, हर बैंक का जैसा एक्सपोजर है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बना दो। अलग अलग बैंक का स्ट्रक्चर बनेगा, अलग अलग बैंक का आपको पता लग जाएगा कि ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस जो है वो किस हिसाब से हो रही है। और सेकेंडली जो है एनपीएस का जो एक्सपोजर है वो एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से है। सो दिस इज समथिंग फ्रेश थिंकिंग विच यू कैन ऑलवेज कोट इन वन लाइन और टू लाइन इन द आंसर, तब आपको फायदा हो सकता है। सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज पेपर वन, अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो उस केस में अगर हम बात करें ट्रांसलेशन और एथिक्स की एजुकेशन में, तो कितना रोल है भाई एजुकेशन में, कितना रोल है एथिक्स का, बहुत भयंकर भी रोल है। अभी कई बार टीचर डस्टर फेंकता है, कई बार टीचर मारता है पकड़ के स्टूडेंट को, स्टूडेंट मर जाता है। तो ये वैल्यूज की बात है, यहाँ टीचर्स की वैल्यूज की बात हो रही है। वैल्यू एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स भी कई बार टीचर को स्टैप कर देते हैं। तो इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए, इमिग्रेशन को समझने के लिए, इंडिया के कल्चर को समझने के लिए, इंडिया की डाइवर्सिटी को समझने के लिए, इंडिया के लैंग्वेज आइडियाज को समझने के लिए, जो कि इंटीमेटली लिंक्ड हैं कल्चर और हिस्ट्री से, ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात यहाँ मैं ट्रांसलेशन की नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ मैं कर रहा हूँ कि आइडिया कितने हिडन है, कितने इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज ऑफ पीस, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इवन ये प्रमोट करना है कि कैसे जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोट करें, कैसे जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करें, और साथ साथ में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी को भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित ऑटोबायोग्राफी है जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, उसका नाम है झूठन, सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। या फिर बामास करुक्कू, ये नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यही कोर्स को डिसाइड करते हैं, यही कोर्स को आप डिसाइड करते हैं, यही चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सो गोइंग फर्दर, लेट्स सी। ओके, दिस इज अनदर केस स्टडी आई एम टेकिंग अप हियर इन ए वेरी वेरी ब्रीफ, कि मान लो आप सोयाबीन फार्मर हो, आप सोयाबीन आप उगाते हो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सोयाबीन फार्मर हो और प्राइस अगर डिप हो रहे हैं और आपको कम दाम मिल रहे हैं, और इंटरनेशनल प्राइस शॉक की वजह से सोयाबीन का ऑयल प्राइस भी डिप जा रहा है, तो आप अपनी कॉस्ट को कैसे कवर करोगे? सोचिए कैसे कवर करोगे, क्योंकि ना तो एग्जाम आपसे करंट प्राइसेस पूछेगा, ना आपसे पर क्विंटल का प्राइस पूछेगा। सोयाबीन पे क्वेश्चन यही आ सकता है, कैसी सॉइल में उगती है सोयाबीन, और सोयाबीन में कौन सा स्टेट कितने नंबर पे है। यहाँ मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इंडिया नंबर 1 है। और सोयाबीन एमएसपी में आती है कि नहीं आती, और सोयाबीन का प्रोटीन कंटेंट कितना है, क्या है। बस इससे ज़्यादा तो बहुत ही मुश्किल है कि आप सोयाबीन हम कहाँ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये आ सकता है, सोयाबीन किस टाइप का है वो आ सकता है। जब जब टैमरिंड आ सकती है, और जब ड्रमस्टिक की बात हो सकती है, सहजन जिसको हम बोलते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोयाबीन जो है वो ओरिजिनली इंडियन है कि अफ्रीकन है कि लैटिन अमेरिकन है, क्या है। इस तरह से आप जरूर सोचना चाहिए, आपको सकते नहीं है, सोचना चाहिए। श्रीलंका क्या लो इनकम ग्रुप कंट्री है कि मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री? श्रीलंका इज ए मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री। तो आप देखिए मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री का जीडीपी किस हिसाब से देखा जाता है, लोअर इनकम का, लोअर अगर जीडीपी है तो आप लो इनकम ग्रुप कंट्री कैसे बनते हो। तुलसी गब्बर्ड का नाम आपको पता होना चाहिए, शी वॉज अ डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर इन द यूएस, नाउ शी हैज लेफ्ट the Democratic Party. Now, a very important case study I am talking about here, which is about the Dutch. The Dutch ने आज तक पानी को हटाने के लिए काम किया है, लेकिन Dutch including the whole Europe is facing the crisis of drought. So now the Dutch people are learning how to retain water. चाहे फिर पहले की अगर हम बात करें तो लो लाइन लैंडस्केप थे वहाँ पर विंड मिल्स थी पानी निकालने के लिए, वहाँ पर जो है कैनाल्स थे, वहाँ पर डाइक्स थे। इसकी वजह से फ्लडिंग को रोका जाता था, लेकिन कंडीशंस अब बिल्कुल चेंज हो गई हैं, एक बार वेट एक बार ड्राई। इंडिया के केस में भी मानसून जो है अक्टूबर तक खत्म नहीं हो रहा है, बिकॉज इंडिया के केस में भी अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशियन और जो बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो जो ओशियन आफ्टर इवन मॉइस्चर को जो लेकर विंड्स आ चुकी हैं, और उन्होंने देयर हैव बीन अ डाउनपोर ऑल्सो, उसके बाद भी ओशियन इज स्टिल वार्मर देन यूजुअल वार्मिंग। इसकी वजह से लेट जो है बारिश हो रही हैं। अभी भी अक्टूबर सीजन तक मानसून इज इन द रिट्रीटिंग मोड। तो ये इंडिया में भी दिख रहा है।
these are, you know, these are the symptoms for the future. तो कैसे Netherlands is working on it. Netherlands is working like, you know, working very smart, and they are doing it because they are using, water rationing. They have started using the ideas कि भाई जो है हमें किस तरीके से पानी को बचाना है. फॉर एग्जाम्पल राइन रिवर के अंदर रिड्यूस वाटर फ्लो इज देयर विच इज फेड बाय द अल्पाइन अल्पाइन माउंटेन्स, अल्पाइन स्नो से जो होता है. तो नीदरलैंड जो है वो अब देख रहा है कि मैं पानी को बचाऊं कैसे. तो सिटी प्लानर्स आर देयर, दे आर क्रिएटिंग एरियाज, ग्रीन एरियाज, ग्रासी एरियाज को वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बना रहे हैं जगह जगह, सो दैट रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड, अदरवाइज इट इज गोइंग इनटू सीवर्स. कंक्रीट टाइल्स हैं जो अदर पेव सर्विसेज जो है वो उनको हटाया जा रहा है ताकि अर्थ को और पानी मिले. सो टाइल, देयर इज अ टाइल रिपिंग कंपटीशन लिटरली गोइंग ऑन. हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट एनजीटी बार बार बोलता है भाई पेड़ों के आसपास से तुम कम से कम उसकी जान मत लो, पत्थर हटा दो. So, ऐसे डच फार्मर्स आर मेकिंग ड्रेनेज डिचेस. ड्रेनेज के जो डिच है उनको शैलो बनाया जा रहा है ताकि लेस वाटर वहां से जो है रिमूव हो सके और वाटर जो है आके वहां रुक जाए. So this is what, because Dutch is the world's powerhouse in terms of tulips, fruits, vegetables and so on. It is world's number 2 exporter of farm products. है कितना इंडिया के मुकाबले, आप सोचिए कितना, और टेक्नोलॉजी के एंगल से आप देखिए कितना आगे है. तो यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि इंडिया जो है, इंडिया का जो इरेटिक मानसून बिहेवियर है, इंडिया की जो वेरिएबिलिटी आ रही है सिस्टम और वेदर के अंदर, वो हम कैसे देखेंगे भाई. हम अदर सेक्टर्स का क्या वेट करते रहेंगे. अगर हमारे यहाँ अक्टूबर तक अगर मान लो लॉन्गर रेनी सीजन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो भाई अब हमारा जो है सोइंग सीजन डिफरेंट हो जाएगा. अब उसके बाद जो है हमारा आप कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर चेंज हो जाएगा, हमारे डैम का मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा. और उसके बाद जो बातें मैंने डच के लिए कही वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं. तो आपको नहीं लगता अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए किसान किसान तक, ये बातें आपके आंसर में नहीं आनी चाहिए. आपको लगता है कि आप औरों से अलग नहीं लिखोगे, क्या आप ग्राउंडेड नहीं लिखोगे, क्या आपके नंबर नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे. टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्पेशली पीएसआईआर एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 अगर मैं बात करूं तो कुर्दिश कम्युनिटी ईरान में ही नहीं है सिर्फ, उसके अलावा बाकी आसपास की कंट्रीज में भी है. टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अर्मीनिया, ऐसा करके है. ये है प्रीडोमिनेटली टर्किश रीजन्स. अब टर्किश क्या है, जो सॉरी कुर्द क्या है, कुर्द आर इन माई आर दे आर सुन्नीज एंड दे आर इन माइनॉरिटी. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई आए कहाँ से, तो कुर्दिश नेशनलिज्म की जो रूट है, दे आर इन द डाउनफॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर जो हम कहते हैं 1498 से लेकर 1920s और 30s तक चला. तो ऑटोमन एम्पायर व्हेन इट वाज क्रम्बलिंग, देन बाय द ट्रीटी ऑफ सर्वरीज जो कि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसने जिसने कॉलोनियल और जिसने कहना चाहिए मुझे सेटलमेंट किया टर्की का, वो कुर्द को उसने इंडिपेंडेंस देने की बात की थी. लेकिन लेकिन कमाल पाशा, अतातुर्क कमाल पाशा, कमाल अतातुर्क जो थे, जो तुर्कों के तुर्क जिसको आप कहेंगे, जो ग्रेट लीडर, उन्होंने इस बात को मना कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता. उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ लवजेन 1924 में हुआ, और कुर्द जो है वो सारे के सारे उनमें बट गया, मिडिल ईस्ट के नेशन में बट गया. इसीलिए कुर्द सेपरेटिज्म सबसे पहले किसको फेस करना पड़ा, ईरान को फेस करना पड़ा. एंड इट वाज हैविंग बैकिंग ऑफ द सोवियत यूनियन. उसके बाद जो है ईरान का बॉर्डर है टर्की के साथ, आप मैप खोलिए और देखिए इराक का बॉर्डर भी है. और साथ में जो है 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तब भी कुर्द्स को क्रश किया गया था. सो बाद में सेपरेटिज्म के देखते देखते कुर्द्स ने बना लिया कुर्दिश पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान. ईरान इराक वॉर हुआ तब भी इनको झेलना पड़ा, और इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा गया जैसा मैंने आपको कहा. तो इसीलिए इराकी कुर्दिस्तान में से टाइज हैं इनके. और साथ में अभी जो चल रहा है ईरान में, अभी जो ईरान में चल रहा है, यू नो दैट दैट ग्रेट upheaval is going on because of that lady, that great मारते she was there, जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था और उनको मार दिया गया. तो आप ये लगा लीजिए कि 10 मिलियन कुर्द्स आर लिविंग इन ईरान. तो इसीलिए जो प्रेशर फॉर सेसेशन है वो ग्रो करता जा रहा है. हमारे लिए इतना जानना जरूरी है फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और मेंस के लिए मैंने आपको बैकग्राउंड बता ही दिया है. नाउ मूविंग फर्दर, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो ओईसीडी ने एक फ्रेमवर्क बनाया. अब बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि ओईसीडी क्या होता है, खुद पता होना चाहिए. ओईसीडी ने फ्रेमवर्क बनाया, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, CARF.
क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंडिया चाहता है कि वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के टाइम पे ही बोला था भाई जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होंगे, जो इंटरनेशनल सिस्टम बन के आएगा, वी आर गोइंग टू फॉलो इट, क्योंकि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ चलेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बॉर्डरलेस है। क्रिप्टो करेंसी में जो है कोई आर्बिट्रेरी कोई भी रेगुलेशन चल ही नहीं सकती, इसीलिए इसमें इंटरनेशनल रेगुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसलिए इफेक्टिव होगी जब तक कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं होगा, चीज़ों को इवेलुएट करके सब सामने नहीं देखेंगे तो चीज़ें होंगी कैसे। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए रिकमेंड करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को नोट कर लेना, जो भी कीवर्ड्स हैं आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दैम। तो इसीलिए अब इंडिया भी CARF को फॉलो करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी 30% टैक्स लगाने की बात की, 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन क्रिप्टो करेंसी, ये भी आ चुका है इफेक्ट में। तो अब जो है आप लगा लीजिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनने जा रही है। अब इंडिया ने अभी रिसेंटली फ्रॉम द पीटी पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग यू कि एक 26 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स मेगा ऑफशोर राउंड के अंदर दिए, तो आप देखो कि ये है कहाँ का, ये है कहाँ का। आप देखो 16 जो CBM है, 16 जो इम्पोर्टेंट CBMs हैं वो आपके जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इनमें फैले हुए हैं। अब 26 ब्लॉक में से 15 जो है अल्ट्रा डीप वाटर हैं, 8 इन शैलो वाटर हैं, 3 जो है 3 आर ऑन इनलैंड। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए कि ये आखिर हैं कौन कौन से और हैं कहाँ कहाँ पर। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ONDC बीटा, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नाम से ही पता लग जाता है डिजिटल कॉमर्स यानी ई कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट किया, और आप लगा लीजिए कि मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से इसको प्रमोट किया गया है। और गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाकर चाहा कि भैया जो भी आपके छोटे छोटे स्टोर्स हैं, जो भी किराना स्टोर्स हैं, पॉप एंड मॉम स्टोर्स हैं, मॉम एंड पॉप आई शुड से, तो दी स्टोर्स को एक वो जो है एक सिस्टम मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो बायर साइड जो है वो तो आपका इंटरफेस क्रिएट कर दिया है कि एक तरफ पेटीएम है और दूसरी तरफ जो है आपका और अदर अदर प्लेयर्स आ जाएगा। तो ये एक तरीके से और डिसेंट्रलाइज लेवल पे लेके जाएगा, और ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके जाएगा और अब मौके देगा और चीज़ों को आसान बनाएगा। तो दिस इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। दिस इज ऑल वी कैन से अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसका थीम क्या है, उसका थीम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी नेशनल गेम्स हमारे हो रहे हैं इन गुजरात, वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इवेंट है, और दिस हैज़ बीन गिवन राइज टू न्यू न्यू स्टार्स ऑल्सो। थीम मैं आपको बता दूं, जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। So that is how we need to work upon it. We need to move faster. We need to make notes. We need to be, calculative in our approach. We need to be looking forward to key things. We need to, work in such a way जहाँ पर हमें चीज़ों को मिले, चीज़ों को पता चले, हम नए नए कीवर्ड्स को पता लगा सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सही अप्रोच से वर्क करना। वर्क सभी करते हैं पर सभी सही अप्रोच से वर्क नहीं करते, एंड दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट एंड वी आर क्रिएटिंग अ माइलस्टोन ऑल्सो। तो यहाँ चलते हैं, हम बात करते हैं कि और क्या कीवर्ड्स और क्या प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम देख सकते हैं। आप उसको अगर आइडिया लगाएंगे देन यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी मोर फास्टर देन योर कंटेम्प्रेरीज। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया की जूट मार्केट की। इंडिया का जूट मार्केट इज इन डिमांड। इंडिया के जूट मार्केट का नाम हो रहा है, जूट एक कोर्स फाइबर है, साइंस एंड टेक के हिसाब से भी है, और सदियों से उगाया जा रहा है गंजेस डेल्टे में। तो इंडिया में जूट फैक्ट्रीज हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडस्ट्री ने अभी कुछ टाइम से स्ट्रगल किया, क्योंकि लेस एक्सपेंसिव सिंथेटिक जो है उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया था। लेकिन अब जो है वापस से दिन आ गए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेचुरल इज फैशनेबल नाउ। तो इंडिया इज होम टू, not India, I should say Calcutta is home to, or Bengal is home to 70 of the 93 jute mills in India. There is nothing more eco-friendly than jute. तो ग्लोबल जो जूट बैग की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। आप लगा लीजिए इट हैज़ बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। यूएस लार्जेस्ट इंडिया का
साइट है, यू वांट टू से दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग लार्ज नंबर टू द यूएस, उसके बाद जो है दे आर एक्सपोर्टिंग टू फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। सो ब्रिटिश टाइम में 1885 1855 मुझे कहना चाहिए 1855 के आसपास हुगली नदी के किनारे रिसरा में फर्स्ट जूट फैक्ट्री हुई थी। 1980s तक फैक्ट्री शट हो गई। जूट मार्केट जो है प्लास्टिक की वजह से खा गया, खत्म हो गया। लिवलीहुड 4 मिलियन फार्मर्स की यानी 40 लाख लोगों की खतरे में आ गई। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, तो इसलिए आप देखिएगा प्लीज जूट बोर्ड को देखिए, पीटी के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन पीटी में आ चुका है। और बाकी भी आप देखिए कितना टाइम लगता है, कैसी क्रॉप होती है, क्या होता है। यू हैव इफ यू जस्ट लुक इन इट देन इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द बोथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मे बी इन द इंटरव्यू ऑल्सो इफ यू बिलोंग टू सच स्टेट, और अगर मान लो गलती से ये बात पूछ ली तो। Coming to the next point, and also I should say the next newspaper, so that we can understand more developments, we can understand more ideas, so that you are able to pick up key areas, key words. बहुत ज़रूरी है रिविजन, बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करके काम करना, अदरवाइज आपका हार्ड वर्क रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। सुपरफिशियल मोटिवेशन भी कभी भी हेल्प नहीं करता। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज देयर, लेट मी डिस्कस विद यू। जो बात कर रहा है कि भाई पॉलिसी मेकिंग कैसी होनी चाहिए वर्ल्ड की, या इंडिया की कैसी होनी चाहिए वर्ल्ड के लिए। क्या पूरा वर्ल्ड फेयर सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहा है? तो अरुण मेहरा साहब चेयरमैन है जो हेल्पेज इंटरनेशनल एंड ऑथर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम्स, तो उन्होंने कहा है कि वाई द वर्ल्ड नीड्स एन एथिकल टूल किट। यही पीटी में आप कोट कर दोगे, उनकी किताब है उसमें मैंने उसको ये ऐसे करके आप एक आध लाइन कोट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक साइंस की बात कर रहे हैं वो, केनीजियन इकोनॉमिक्स और फ्रेडमैन इकोनॉमिक्स, यानी वेलफेयर, और दूसरा मॉनेटरिस्ट, यानी कि मॉनेटरिस्ट चाहते हैं गवर्नमेंट अपना काम धंधा करे और पैसे के बीच में ना आए, वेलफेयरिस्ट चाहते हैं कि पैसा लगाया जाए। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नंबर वन होने चाहिए, ऐसा मॉनेटरिस्ट का मानना है। तो बोथ साइड्स एग्री करती है कि जीडीपी बढ़नी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब क्या है, क्लब ऑफ रोम ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है, क्लब ऑफ रोम 1972, कि जीडीपी जो है ग्रोथ सिर्फ इंडिया को और या वर्ल्ड को सुख नहीं दे सकती, वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए हेल्थ ऑफ द प्लैनेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया। कम्युनिटीज़ को ये बोला जाता है कि भाई आपके जो काम है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, मतलब कि बेसिकली बिजनेस को डुबा रहे हैं, तो वो गलत है। अनब्रिडल्ड प्राइवेट एंटरप्राइज आ तो गई लेकिन डुबाएगी। तो थेचर, रेगन, शिकागो मॉडल। थेचर, मार्गरेट थेचर, रेगन, रोनाल्ड रेगन, शिकागो, यूएस। थेचर, रेगन, शिकागो मॉडल, न्यू लिबरलिज्म, सब कुछ खोल दो, बढ़ाते जाओ, कंजम्पशन बढ़ाते जाओ, एक गाड़ी खरीदो, दूसरी खरीदो, एक घर खरीदो, दूसरा खरीदो, तीसरा खरीदो, कहाँ जाओगे भाई, गड़बड़ हो जाएगी। सो द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस रिवील्ड इनसफिशिएंटली रेगुलेटेड मार्केट्स डूबते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल सिस्टम का स्टेबलाइज होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को जो है उसको तो बचा लिया, लेकिन जो मिलियंस ऑफ सिटीजन्स जो थे वो कंपनसेशन उनको कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए आप ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को तो आप स्टेबलाइज कर देते हो, पैकेज दे देते हो, जैसे ग्रीस पे दिया, उससे सिटीजन्स को और नुकसान हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तो मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि बैलेंस बजट है, लो इन्फ्लेशन है, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम उस केस में कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सोचने की बात है। यानी कि अगर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करें और असली में, लेकिन वो अगर बड़े बड़े कॉरपोरेशन को ही फायदा करते हैं, तो इसीलिए कोई फायदा नहीं है। तो पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, इन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। इसीलिए आर्टिकल सेज दैट कि 5 सिस्टमिक सोल्यूशन होने चाहिए। उसमें क्या आना चाहिए? पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, अर्थ का होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को सर्वाइव होना चाहिए, ऐसा इकोनॉमी का मॉडल होना चाहिए कि होल सिस्टम, उसके अंदर फीडबैक लो लोकल इकोनॉमी की, लोकल एनवायरनमेंट की, नेचुरल सिस्टम की। और 5 ट्रैक सॉल्यूशन किस किस चीज़ के होने चाहिए? पॉवर्टी को एंड करो, इनइक्वालिटी को एंड करो, वुमेन को एम्पावर करो, फूड सिस्टम को हेल्दी बनाओ, और ट्रांजिशन टू एनर्जी। एक बार आपने 5 पॉइंट ले लिया, बात ही खत्म। ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट कहती है कि टू लिटिल टू लेट, या फिर बिग लीप भी बिजनेस को नहीं मिलने वाला, उनको भी दिक्कत हो जाएगी अगर ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें अप्लाई नहीं की। सो
कैसा बिग लीप चाहिए हमें? हमें ऐसा बिग लीप चाहिए जो हमें लोगों से जोड़ सके, जो हमें टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी नोन है उनको इक्विटेबल एक्सेस करा सके, जो हमें लोकल सॉल्यूशंस दे सके, जो हमें जो है कम से कम में ज़्यादा लाइफ को सिंपल करने में हेल्प करे। तो एक इक्विटेबल पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमिक वेल्थ और सोशल पावर का, रादर देन जो है डिसरप्टिव पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस हो, जैसा कि हम रशिया यूक्रेन में अभी हम बात करते हैं। तो इसीलिए जो है सोशल टेंशन इंडेक्स बनाया गया और एवरेज वेलबिंग इंडेक्स बनाया गया। तो इस सोशल टेंशन इंडेक्स और एवरेज वेलबिंग इंडेक्स दोनों जब अपनी अपनी जगह सही काम करेंगे तो वही आपको पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटी की हेल्प दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाने वाली। ऑथोरिटेरियन कंट्रीज गवर्नमेंट जो है उसको भी सिटीजन सपोर्ट करते हैं, अभी हमने बात की थी देखो, चाहे आप इटली की बात करो, चाहे आप हंगरी की बात करो, चाहे यूएस में पहले हम बात करते थे, तो ये दे आर वेरी वेरी बैड फॉर द हेल्थ ऑफ सिटीजन एंड ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी। तो इसीलिए सोशियो पॉलिटिकल वर्ल्ड जो है वो और टूटता चला जाएगा, हमारा प्लानट और गर्म होता चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस ग्लोबल प्रॉब्लम्स के आप निकालोगे नहीं, लोगों की बातचीत, लोगों के विचार दबते चले जाएंगे और लास्ट में कुछ नहीं होगा, वो जो है खत्म हो जाएगा सब। क्योंकि पीपल जो है वो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के लिए, वो इसीलिए पॉलिसी इंक्लूसिव होनी चाहिए, पॉलिसी जो है वो मार्जिनाइज सेक्शन के हिसाब से होनी चाहिए, पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, नहीं तो दिक्कत होने में कोई देर नहीं लगेगी, ऐसा आर्टिकल कहना चाहता है। अब मैं आपको एक डिबेट की बात करता हूँ, क्या आप कहते हो कि टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड के लिए? तो इन्होंने आर्ग्यू किया दैट नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो कह रहा है कि इंडिया में अराउंड 1.65 लाख, यानी 1,65,000 डेथ्स आर देयर एवरी ईयर बिकॉज ऑफ सुसाइड्स। और सुसाइड कैसे, कोई पढ़ लेता है, कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, तो आप क्या टेक्नोलॉजी को ब्लेम करोगे? टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सोचना तो पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज को हाईलाइट कर रहा है कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, हो क्या रहा है? So the point is that the technology is not the core of the problem. Technology is not the perfect solution also. Suicide is because of the reality of society. Suicide is because of the demand of the society from that gentleman, from that person जो वो हैंडल नहीं कर पाता, सेंसेशनल बना देते हैं उसको, मिसडायरेक्टेड एनालिसिस हो जाता है और उसके बाद सुसाइड को आप बोलते हो कि ये तो भाई टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। अब कोई साइबर बुलिंग या सुसाइडल थॉट की भी अगर हम बात करें, तो साइबर बुलिंग जो है करने वाला तो कोई और था ना, टेक्नोलॉजी वॉज जस्ट ए मीडियम। तमिलनाडु के इन्होंने केस स्टडी की बात की, तमिलनाडु में बहुत सारे डेथ्स हुई सुसाइड की, तो देन दे फाउंड इट इज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन गेम्स हैं, जैसे वो ब्लू व्हेल या ब्लू शार्क करके भी कुछ आया था, एक गेम आया था, आई रिमेंबर, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, प्लीज यू थिंक अबाउट इट। और रमी गेम्स की बात करो, और आजकल जैसे आ रहा है भाई ये गेम खेल लो, पैसा इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है, अपने रिस्क पर खेलें, तो इससे होता है ये, तो टेक्नोलॉजी कहाँ रोली, तो आप जो कर रहे हो उससे होगा ना। देयर शुड बी सफिशिएंट डेटा। ऑलरेडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये पीटी के लिए हो गया सिंपल, लेकिन आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने आपसे जस्ट शेयर किया। मूविंग फर्दर to other key areas and other key ideas, so that we understand and we take up the values and the understanding इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम ये कोट पढ़ें, तो कोट क्या कह रहा है? कोट कह रहा है कि द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी, कॉमा, अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। अब आप इसको करके दिखाओ, अब आप इसको करके दिखाओ, आप इसको जो है सेंटेंस को एथिक्स के हिसाब से 10 वर्ड्स में लिख के दिखाओ, पीटी में आ जाएगा, और सॉरी मीन्स एग्जामिनेशन में, जनरल स्टडीज पेपर 4 में आएगा। समझने में ही आपको टाइम लगेगा पहली बात तो। पावर जो है राइटफुली एक्सरसाइज होनी चाहिए सिविलाइज्ड मेंबर्स के ऊपर, और अगेंस्ट हिज विल नहीं, अगेंस्ट हिज विल राइटफुली तभी मानी जाएगी जब अगेंस्ट हिज विल है, लेकिन वो राइटफुली होनी चाहिए और दूसरों को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि ओवर बियरिंग नहीं होना चाहिए स्टेट, चाहे वो फिर केरला की बात हो, चाहे फिर जे एंड के की बात हो, चाहे फिर जो है किसी भी बात हो। तो इंडिया जो है जब बनेगा डेवलप्ड नेशन जब ऐसे लॉ होंगे जिनके अंदर अनरीजनेबल कर्ब्स नहीं होंगे, जिनके अंदर जो है चीज़ों को डीरेगुलेटेड तरीके से रखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई रेगुलेशन होगी ही नहीं। सो नॉन स्टेट एक्टर्स जब कल्चरल सेंसिबिलिटीज को अटैक नहीं करेंगे, नॉन स्टेट एक्टर क्या हुआ है, जैसे अब मान लो आपके यहाँ कोई दल है, आपके यहाँ कोई बॉडी है, आपके यहाँ कोई
कोई भी संस्था है वो अपने आप को बोलती है यहाँ पर ये बैन हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं पहनेंगे, तो वो क्या हुआ, वो नॉन स्टेट एक्टर हुआ। एक्टर स्टेट का होना ठीक है, पर नॉन स्टेट एक्टर का होना ठीक नहीं है। सो दैट इज हाउ व्हाट वी कैन से। सो हमने पढ़ा था दैट इंडिया में अभी गाम्बिया में जो हुआ, एक ट्रेजेडी हुई, गैम्बियन ट्रेजेडी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इंडिया क्या कहता है फार्मा रेगुलेशंस के बारे में। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने कहा था कि भाई जो है करंट केस के अंदर हमें जो है कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करो, एग्जामिन करो कौन कौन से बैचेस में है, और उसको फिर उसके ऊपर एक्शन लीजिए। सिस्टमिक अगर मैं लेवल की बात करूं तो हमें स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ एपीआई एंड फॉर्मुलेशन यूनिट चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ लॉ जब उसको तोड़ा जाए, और उसके बाद जो है देयर मस्ट बी ए कीन कैंपेन टू प्रमोट गुड प्रैक्टिसेस विच विल इंक्लूड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटेंशन एंड एटीट्यूड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीटी के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, गैम्बिया की लोकेशन से लेकर और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और मेंस एग्जामिनेशन में आप समझ लीजिए कि भाई ये जो हुआ है, इसी को एक और नाम देकर, इसी को एक और चीज देकर, इसी को मतलब आपको कहेंगे कि भाई आप जो है इसका वो बता दीजिए, इसकी एक केस स्टडी बना देंगे मेंस एग्जामिनेशन में, और जो है उसको बोलेंगे कि भाई आप जो है बताइए हाउ टू वर्क ऑन दिस केस स्टडी। मूविंग फर्दर, अडेप्टिबिलिटी क्वेश्चंट एथिक्स का पार्ट है, और फिलॉसफी ऑप्शनल का भी पार्ट है। तो व्हेन यू नीड टू चेंज हैबिट, जॉब, लाइफस्टाइल, सोसाइटी, सोशल सर्कल, प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, अडेप्टिबिलिटी क्वेश्चन, कि इतने ओपन है आप चेंज होने के लिए। क्या आप जो चेंज हो रहे हैं, आपके आसपास की चीजें भी चेंज हो रही हैं क्या? आपने उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? सबसे पहली बात एक्सेप्ट, सेकंड इज टू अप्रिशिएट, एंड थर्ड इज टू एडजस्ट। सबसे पहले आपको अप्रिशिएट और एक्सेप्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ओल्ड कंफर्ट जोन को मत देखिए, आप जो है नए बिलीफ को क्रिएट कीजिए, नए आइडियाज को लेकर आइए, और आप बिल्कुल अडेप्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनियन और इनर सेल्फ जब आप बात करते हैं कि यस आई एम ग्रेट, आई कैन डू दिस, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, अपने आप को आप रिमाइंड कराते हो कि ये मैं कर चुका हूँ, एंड देन यू टेक हैव जुडिशियस चॉइस। तो एक चीज का मैं आपको बोल सकता हूँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता, असर होता है, but sometimes it takes time because everything is going to be meaningful only with consistent practice. अगर मैं बात करूं इनोवेशन की, या फिर अगर मैं बात करूं पॉलिसी इम्पिटिस की, तो अगर हम बात करें इनोवेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे की बात है। इसीलिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंडिया का रैंक आया है 40 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो 6 स्पॉट हमने इम्प्रूव किया, यानी कि हमने जो है 81st हमारा रैंक था, अब हम उसके बाद हमने इम्प्रूव कर लिया। इंडिया एंड चाइना आर इमर्जिंग एज ग्लोबल इनोवेटिव पावर हाउसेस। सो 19 इकोनॉमीज हैव परफॉर्म्ड अबव एक्सेप्शनल लेवल, तो इंडिया उनमें से एक है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉजिटिव आउटलेट्स, जिसका जीआई स्कोर और जीडीपी पर कैपिटा, जिसको हम पीपीपी में देखते हैं, वो बहुत हाइयर है इनोवेशन के मामले में। जुगाड़ू तो हम बचपन से ही रहे हैं, सिविल सर्विसेज भी जुगाड़ पे ही चलती है। तो ओनली चाइना आउट ऑफ ऑल ब्रिक्स नेशन, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इनमें से चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनमें से ओनली इंडिया जो है, चाइना ओनली इज द वन कंट्री विच हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया, रेस्ट ने नहीं किया। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडर है आईसीटी सर्विसेज में, और दूसरा जो है वेंचर कैपिटल रिसिपिएंट्स में भी उसकी वैल्यू बढ़ रही है, स्टार्टअप और उसमें ही बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में बढ़ रहे हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी में 12वें नंबर पे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, यानी हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो 90% अगर इनफॉर्मल भी है तो कितनी डाइवर्सिफाइड है। कहीं पर जुगाड़ हो रहा है, कहीं पर कारपेंटर काम कर रहा है, कहीं पर जो है वेलवेट हो रहा है, कहीं पर जो है आपके पर्दे बन रहे हैं, कहीं पर जो है आपके छोटे छोटे
कंपोनेंट्स बन रहे हैं कहीं पर, आपके 10 रुपए के जो सामान बिक रहे हैं, चाकू से लेकर और आपके तालों से लेकर आपके शीशे से लेकर आपके हाउस होल्ड आइटम्स, ये है डोमेस्टिक इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन। एक स्मॉल लेवल पे, बड़े लेवल पे जब आएंगे तो इसमें सेमीकंडक्टर्स आ जाएंगे, इसके अंदर ऑटो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इसके अंदर जो है इसरो के भी अगर रोल की हम बात करें, स्पेस की इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। तो इनोवेशन और इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कैसे? अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, नेशनल इनोवेशन फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस के द्वारा, प्रयास, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब एक साथ नहीं लिखने मेंस में, लेकिन आपको कुछ पता होने चाहिए। हमारे पास है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016, ये आपको पता होनी चाहिए, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इंडिया अभी भी यूएस, चाइना, सिंगापुर और यूरोपियन कंट्रीज से पीछे है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। यूएस के अंदर 6 लाख एप्लीकेशन थी 2020 में। तो इंडिया को भी जो है हमें जो है एक पेटेंट ऑफिस हमें और बड़ा करना पड़ेगा, प्रोसेस सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी। दिल्ली में, द्वारका में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पेटेंट ऑफिस है। आप R&D की अगर बात करें तो उसमें इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया का एक्सपेंडिचर है सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी, ब्राजील का 1.16 है, रशिया का 0.98 है, साउथ अफ्रीका 0.83, चाइना 2.14 और यूएस और जर्मनी का 3% से भी ज्यादा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं कि भाई जो बिल आया है, एक बिल बिल इज देयर दैट इज कॉल्ड द टेलीकॉम्स बिल। अगर हम उसके पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि भाई भी कोई भी रिवीजन होगा टेलीकॉम पॉलिसीज में इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग में, तो उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, कि यानी जो अभी से होगा वो होगा, टेली वोडाफोन के केस की तरह पीछे से नहीं होने वाला। सेकेंडली, वेरीफाइबल आइडेंटिफिकेशन होगा, और उसके बाद जो है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कॉल्स नहीं जाएंगी। तीसरा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा रेडियो स्पेक्ट्रम का, और उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी को ठीक से यूज़ करने की बात की गई। चौथा, आपका रेडियो स्पेक्ट्रम जो है बाकी पर्पसेस के लिए भी यूज़ होगा अदर देन ऑक्शंस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के लिए कि अलग मेथोडोलॉजी से और ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट के साथ साथ पॉलिसी को ढंग से यूज़ करें। दूसरा, टेलीकॉम फैसिलिटी प्रोवाइडर्स और जो एसोसिएटेड हैं उनको राइट ऑफ वे, जो राइट ऑफ वे इन मतलब पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड है सारा का सारा, उसके अंदर जो है उनको एक पॉजिटिव अप्रोच से यूटिलिटी की बात की गई है कि हाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कमियों की बात भी की गई है। ओटीटी की बात करें, अब ओटीटी जो है वो कैसे आप उसको हैंडल करोगे? अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो, क्या नाम है उनका, जितेंद्र साहब की जो बिटियां हैं जिनका बालाजी टेलीफिल्म्स है, उनको बोला है कि यू आर करप्टिंग द यूथ, करप्टिंग द यंग माइंड्स ऑफ इंडिया बाय योर ऑल सीरीज, ऑल दैट सीरीज। ओटीटी के थ्रू ही तो हो रहा है वो। तो ओटीटी सर्विसेज रेगुलेट करेंगे मोबाइल नेटवर्क की तरह। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, टीआरएआई ने 2020 में एक पेपर निकाला था, पर देयर स्टिल डिबेट कि उनको करेंगे कैसे, क्योंकि जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो लाइसेंस्ड हैं और वो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन में काम करते हैं, क्योंकि उनको एक्सक्लूसिव एक्सेस है रेडियो स्पेक्ट्रम का, राइट टू वे भी है, ऑप्टिक फाइबर टावर, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, देख लीजिएगा। रूरल एरिया तक में बीएसएनएल के टावर्स के थ्रू काम करते हैं, तो इसीलिए वो स्पेक्ट्रम के लिए पे भी करते हैं, लाइसेंस फी भी देते हैं। लेकिन ओटीटी तो कुछ नहीं करते ऐसा, उनको तो कोई एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस नहीं है एक्सेस की, उनको रेगुलेट ही नहीं किया गया। तो ओटीटी सेगमेंट जो है वो डिफरेंशिएट होना चाहिए अलग से, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से, उसको यूज नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये आर्टिकल यही आर्ग्यू कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन जो है और जो मोनोपोली जो है वो यहाँ पर अलग हो जाती है। तो ओटीटी शुड बी डिफरेंशिएटेड। अब देखना पड़ेगा कि उसको कैसे किया जाए, क्योंकि डेटा की बात है, प्राइवेसी की बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात है, तो आप दोनों को सिमिलर टर्म्स में नहीं कर सकते। तो टीआरएआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीआरएआई देखिए है क्या, टीआरएआई एक्ट आया था 1997 में, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। रेगुलेटर है पास्ट 25 ईयर से, शेप करता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन को लैंडस्केप में, और एडिशनल पावर भी टीआरआई को दी है कि प्रेडेटरी प्राइसिंग को भी रोक सके। तो इसीलिए कहा गया है कि देयर शुड बी यू नो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है उसके अंदर, उसके एम्बिट में होना चाहिए प्राइसिंग की बात, ना कि टीआरआई की। सेंटर के पास ओवर रीचिंग पावर्स हैं सब कुछ रेगुलेट करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर वो करता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी तो इज डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अंदर जो है आपको बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखने पड़ेंगे, जो पर्सनल डेटा और उसके बाद प्राइवेट लाइफ एंड राइट्स एंड सो ऑन।
टेलीकम्युनिकेशन जो है डिजिटल कम्युनिकेशन बन चुका है। ओटीटी है, क्लाउड सर्विस है, नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, कंटेंट है, एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, सब आ चुके हैं अब तो। ये सबको भी लेके आना पड़ेगा। टेलीकॉम कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ इशू नहीं है। तो इसीलिए बिल के अंदर ये सारी चीज़ों को आना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन से लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से लेकर सारी बातों को लेकर आना चाहिए, ओटीटी को लेकर, तब जाके बात बनेगी। दिस इज हाउ कॉम्प्रहेंसिवली दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। So just read it, understand it, and get back with a clear cut understanding. सो मैंने आपसे इतनी सारी चर्चा की, मैंने आपसे इतनी सारी बात की ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ताकि आप चीज़ों को देख सको, ताकि आप ये देख सको कि आखिर रिक्वायर्ड एरियाज क्या हैं आपके, ताकि आप जो है उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली अच्छे से हैंडल कर सको। Without smart, without being confident, it is very very difficult to handle things. You must make your own smart notes very very fast, very very efficiently, so that you are able to get the best at any given point of time. Without that, success will be elusive. Success only comes when you work smartly. So this is how we have taken up so many important areas and so many important articles and so many important debates. Rest we will take up whatever is there importantly in the next edition, which I'm going to share with you soon. And do share, like, and subscribe our channel, and do put your best efforts for your success. Thank you very much. All the best.